Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and today in the next video we are going to solve the activity ratio, second formula, trade receivable turnover ratio, as we'll try to finish all the next formulas related to activity ratio in this video only, and then in the next video we are going to start with profitability ratios. First we'll discuss all the formulas and then we'll solve the questions. So trade receivable turnover ratio formula is net credit revenue from operation अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. नेट बेटा जहाँ नेट आता है तो वहाँ रिटर्न्स माइनस होती है. तो हम देखते हैं रेवेन्यू, जो टोटल आपकी रेवेन्यू होगी, कैश मिला होगा, क्रेडिट नहीं मिला होगा, तो टोटल में से अगर आप कैश माइनस करोगे यू विल गेट क्रेडिट. ठीक है. Now see the question in front of you. Calculate trade receivable turnover ratio from the following data. Total revenue from operations for the year 2 lakh. Total, simple question is this. Total revenue rupees 2 lakh. Then cash revenue is given, credit is not given. So simple cash revenue 40,000. देखो टोटल गिवन है, कैश गिवन है, क्रेडिट गिवन नहीं है. तो हमने क्या करना है, टोटल में से कैश माइनस करोगे यू विल गेट क्रेडिट. क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे किसी भी चीज़ को सेल करने के, या तो हम कैश पे सेल करते हैं या क्रेडिट पे. तो जब आपका टोटल रिवेन्यू है इट मीन्स कैश एंड क्रेडिट इज बीइंग इंक्लूडेड इन दैट. ट्रेड रिसीवेबल इन एट द बिगिनिंग, ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग rupees 20,000. Trade receivable and rupees 60,000. See, now we'll solve this. First of all, we should calculate the net credit revenue from operation. How do we calculate net credit revenue from operation? You will get total revenue minus cash revenue from operation. I'm writing in a short form, but you will write the complete form. From operation. So it is 2 lakh minus 40,000. You will get 1 lakh 60,000. Fine. Average trade receivable, simple, opening plus closing upon 2. Trade opening means 20,000 plus 60,000 upon 2. It will be 40,000. Fine. How 40? 60 plus 20, 80 upon 2. You will get 40,000. Now see what the formula, trade receivable. Turnover ratio. How to write? See, net 1,60,000 upon 40,000. You will get 4 times. 4 times is the answer. And when you will convert it in average period में convert करना है तो 365 days से divide कर दो. See how? Or months, average collection period equals to 365 upon trade receivable turnover ratio, that is 365 upon 4. You will get the days. और अगर months में convert करना है तो 12 upon 4 कर दोगे. तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है. सी, इसमें आपको टोटल रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू गिवन है.
किसी में आपको बोला है कि टोटल रेवेन्यू का, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे, ध्यान से समझना है आपको, कैश रेवेन्यू भी गिवन नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कैश रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू का 20% है, तो पहले कैश रेवेन्यू निकालो, माइनस कर दो टोटल रेवेन्यू से, यू विल गेट क्रेडिट। समटाइम्स यू विल गेट क्रेडिट रेवेन्यू ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो उसको कैलकुलेट कर लो। सो सिंपल इज दैट, हमें क्वेश्चन फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूले सी सिंपल क्वेश्चन में जो मोल्ड किया है उसको हमने देखना है और सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे कहा होता कि कैश रेवेन्यू आपका 20% है टोटल रेवेन्यू का, तो 20% हम इसका निकालते, 20% इसका निकालने के बाद यू विल गेट कैश रेवेन्यू, तो जो आ जाता है कैश रेवेन्यू वो हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करते, यू विल गेट नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, फॉर्मूले को मोल्ड करना। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। Yes, see the next question on your screen. Calculate trade payables turnover ratio from the following information. Credit purchases equals to rupees 6,20,000. Purchase return equals to 20,000. Opening creditors 1 lakh. Closing creditors 1,40,000. Opening bills payable 25,000. Closing bills payable 35,000. सी नेट क्रेडिट परचेज, यहाँ पे आपको सिंपल क्रेडिट परचेज गिवन है, नेट निकालने के लिए हम रिटर्न्स को माइनस करते हैं। तो क्रेडिट परचेज अगर यहाँ नेट गिवन होता तो वी नॉट सपोज टू टेक दिस, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्रेडिट परचेजेस गिवन है, तो नेट निकालने के लिए वी हैव टू डिडक्ट परचेज रिटर्न। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। सी अगर आपको नेट क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन है, टोटल परचेजेस गिवन है, तो आप टोटल परचेजेस भी इसकी जगह ले सकते हो। क्रेडिट परचेजेस माइनस returns, purchase return, that is 6,20,000 minus 20,000, you will get 6 lakh. Now average credit, average trade payable, देखो ट्रेड पेबल में आपको गिवन है क्रेडिटर ओपनिंग, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग और क्लोजिंग बीपी। सी ट्रेड पेबल्स ऑल्सो इंक्लूड, जब मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे, ट्रेड पेबल्स इंक्लूड करते हैं आपके क्रेडिटर्स प्लस बीपी, तो हम इसको एज इट इज लेंगे, जो फॉर्मूला है उसको इन चीज़ों को लेंगे, तब आप सॉल्व करोगे। तो ट्रेड पेबल में आपके यहाँ आपने ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो आपको इसमें भी एवरेज में ट्रेड पेबल में ओपनिंग और क्लोजिंग ही चाहिए होता है। तो सी एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है, तो हम ये चारों ले लेंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल भी क्रेडिटर्स प्लस बीपी होता है, तो हम इन चारों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, यू विल गेट ट्रेड पेबल्स। सो 1 lakh plus 1,40,000 plus 25,000 plus 35,000 upon 2, so you will get here 1,50,000. फाइन। अब आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और क्लियर हो जाएगा आपका। ट्रेड पेबल टर्नओवर
ratio, you will get 6 lakh upon 1,50,000. So you will get 4 times. आंसर यू विल गेट 4 टाइम. सिंपल है, क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन में समझना है कि ये फॉर्मूले से हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो रिक्वायर्ड आइटम्स यू विल डेफिनेटली गेट इन द क्वेश्चन. ओनली हाउ टू यूज दोज आइटम्स, दोज material that you can get this formula and you can solve the question. So 4 times is the answer you will get from here. Next, last formula from the activity ratio, that will be working capital turnover ratio. That is working capital turnover ratio. Well, yes, the last formula from the activity ratio is working capital turnover ratio, and its formula is net revenue from operation upon working capital. नेट रेवेन्यू कहाँ आता है? सी द नेट जहाँ आ जाता है, इट मीन्स आपकी जो टोटल रेवेन्यू, जितनी रेवेन्यू हुई है कैश और क्रेडिट, उसमें से आपने रिटर्न्स माइनस करने हैं तो आपका नेट निकलता है. ठीक है, तो रिटर्न्स माइनस करने के बाद आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन you will get 1,30,000. Credit revenue from operation 3,80,000. Revenue from operation returns, revenue from operation returns is rupees 10,000. Liquid assets 1,40,000. Current liabilities rupees 1,05,000 and inventory rupees 90,000. C. अब आपका आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश इज गिवन टू यू, क्रेडिट इज गिवन. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न्स. रिटर्न्स माइनस करना है, प्लस करके इसको माइनस करना है. Then you will get the net revenue from operation. So you will get 1,30,000 plus 3,80,000. 10,000 equals to 5 lakh. 5 lakh आपका आंसर आ गया. Now working capital. Working capital we have करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट क्या है आपके? लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री. यहाँ पे हमें करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री भी है. तो आपका आ गया यहाँ पे 1,40,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 2,30,000. फाइन. करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 1,05,000. तो सीधा सीधा करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, यू विल गेट वर्किंग कैपिटल. कितना आ गया हमारा? 1,25,000. अब फॉर्मूले में पुट करो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 5 lakh upon 1,25,000. Solve it. You will get answer in 4 time. That's it for this video. यहाँ आप
एक्टिविटी रेशियो के सारे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए, एक एक दो दो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can mail me or you can message me on my comment box. Till then, देखो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को, डू सब्सक्राइब कि आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे. तो कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको घर बैठे सारी वीडियो सारा चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो आपके क्वेश्चंस भी आराम से निकल जाएंगे और आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर पाओगे. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. अच्छे से फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट को समझ के फॉर्मूलेज याद करना. डोंट क्रैम द फॉर्मूला के रट्टे मार लिए, क्योंकि हर फॉर्मूले से कैसे नया फॉर्मूला निकालना वो आपको मैंने समझाया है. तो डू लर्न द फॉर्मूला, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड देन learn it. Clear? Till then, thank you and have a nice day.